दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। पहले तो जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और देखिए, मैं पूरा कंटेंट जो भी पढ़ाती हूँ उसमें काफ़ी मेहनत करके पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली हाँ, कोई बात नहीं, 2 साल से पढ़ा रही हूँ। सब्सक्राइबर्स भले ही कम है, लेकिन ये है कि मैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया था द करंट आई थ्रू रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सी। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में मैं आपको, चलो यही वाला पेन दे देती हूँ। देखिए, यहाँ पे देर आर टू नोड्स, लेट इट बी वन एंड दिस इज टू। दिस इज वी ए nodal voltage at node 1, this is VB nodal voltage at node 2. This you can see, this is the op amp. In the inverting terminal you have resistances, each of resistance 2R is connected. Now what you can do here, यहाँ पे just apply by KCL at node 1. You have what? VA, this is 0 volt, right? So this is VA minus 0 upon small, this is 2R, R plus R, 2R. This is twice R plus VA minus V upon twice R plus this is VA minus VB by R. VA minus VB by R, and this is equal to 0. Now just take the LCM, then you have VA plus VA minus V plus twice of VA minus twice of VB equal to 0, and then you have 4 VA minus twice VB equal to V. This is first equation. Now by KCL at node 2, what do you have? You have VB. So just VB minus VA upon R plus VB minus V upon 2R, because this is also 2R, and plus VB upon 2R equal to 0. This is the case. Now just try to solve this equation. Take out your copies. Okay. And this will become what? This will be twice of VB minus twice of VA plus VB minus V and plus V equal to 0. Okay. Now you have 4 VB. This is 4 VB, and this is minus twice VA is equal to V. This is second equation. Okay. This is first equation. Okay. Now after solving and simplifying both equations, what do you get actually? You get minus VA is equal to VB is equal to V by 6. So what do you have? I is equal to what? I is equal to actually VB by 2R, because this current is flowing through this resistance which is connected in the feedback network of this inverting terminal. So this will be VB by see, actually this will be, yes, 1 minute, this is VB by small r actually. So current will be, yes, so it will be actually, it will be V by 12R. Actually it will be V by 12R. Okay, so the answer will be C option. ठीक है. Now next question is, assuming the op amp to be ideal, the gain V output by V input, this is V output by V input for the circuit shown is, see, nodal equation at V, this is the nodal, this is the node at V. So the nodal equation at V will be what it is actually V input. Okay, now it is what, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, आपकी जो करंट है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या होगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस वी आउटपुट बाय आर। यहाँ पे ये वी बाय कितना आ रहा है आपका, मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में V बाय 6 आ रहा है। तो I इज इक्वल टू V बाय, ये जो भी पॉइंट है इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये V बाय 12 आ रहेगा। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। इसमें आपका ये जो है, ये मान लीजिए 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट है ही बिकॉज प्लस इनपुट टर्मिनल इज कनेक्टेड एट द ग्राउंड वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए V माइनस 0 अपॉन 10 प्लस V अपॉन 1
एंड प्लस v माइनस v आउटपुट अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू v प्लस 10v प्लस v माइनस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस v, ये तो 10 वोल्ट्स है ना, कितना 10v हो गया, ट्वाइस v माइनस v आउटपुट, ओके, एंड प्लस 10v इक्वल टू 0, ट्वाइस v, हाँ तो ये 12v हो गया ना, तो 12v इज इक्वल टू v आउटपुट, ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें नोडल इक्वेशन इन्वर्टिंग नोड पे लगाएंगे, इस नोड यहाँ पे लगाएंगे, तो आप लिखेंगे बाय KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, आपके पास ये v इनपुट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस v इनपुट अपॉन 1 प्लस 0 माइनस v अपॉन 10। ठीक है, विच इम्प्लाइज आपकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस v इनपुट माइनस v अपॉन 10, तो दिस इज इक्वल टू माइनस v इनपुट इज इक्वल टू v अपॉन 10, तो आपके पास कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस 10v इनपुट। ठीक है, यही आएगा ना, आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं नोडल इक्वेशन में रख के। तो अब आप इसमें हमें क्या निकालना है, इट इज आस्किंग v आउटपुट अपॉन v इनपुट, वेरी सिंपल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, यहाँ से v इनपुट कितना हो गया, माइनस v अपॉन 10, तो यानी कि v आउटपुट अपॉन v इनपुट, दिस इज इक्वल टू 12v अपॉन माइनस v अपॉन 10, सो दिस इज अराउंड माइनस 120, तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस 120 होगा। कभी कभी हम घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये ओपैम के भी क्वेश्चन टफ होते हैं, क्योंकि इसमें भी KCL KVL लगाने में बच्चे गलती करते हैं। देखिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, दिस इज योर Vx, दिस इज योर Ix, दिस इज योर R3। ठीक है, अब इसमें आप देखिए यूजिंग KCL, बाय KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल वी हैव व्हाट, Vx दिया है आपको, ये Vx एक्चुअली यहीं आ जाएगा, तो ये आपका होगा Vx माइनस v, या तो अगर ये vx इधर है तो vx माइनस v बाय R2, ठीक है, प्लस आप vx अपॉन R1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ vx माइनस v अपॉन R2 प्लस vx अपॉन R1, ओके, vx माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी vx अपॉन R2 प्लस vx अपॉन R1 इज इक्वल टू v अपॉन R2, यही वैल्यू आएगी। अब जब इसको आप थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कीजिए तो vx और यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 v अपॉन R2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो vx इज इक्वल टू वॉट, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 एंड दिस इज वॉट v अपॉन R2, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, vx इज इक्वल टू वॉट, vx बाय v इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया। अब इसने जो पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इट इज आस्किंग इनपुट रेजिस्टेंस, व्हाट इट इज आस्किंग इनपुट रेजिस्टेंस व्हिच इज द रेशियो ऑफ Vx अपॉन Ix, यही पूछा है, हमने Vx निकाल दिया। अब हम सेम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगाएंगे, एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बाय KCL, आप क्या लगाएंगे, देखिए Ix की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ Ix इज इक्वल टू वॉट, Vx माइनस V अपॉन R3। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि Ix इज इक्वल टू, दिस विल बी Vx माइनस V अपॉन R3। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू Vx माइनस Vx इंटू, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी Vx इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1, यही होगा। सो दिस विल बी Vx माइनस Vx इंटू ये वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 अपॉन R1। ठीक है, एंड दिस विल बी वॉट, इट विल बी R3, ये R3 हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी Vx R1 माइनस Vx R1
माइनस वी एक्स आर टू अपॉन आर वन आर थ्री, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वी एक्स आर टू अपॉन आर वन आर थ्री, ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब आप इसमें सिंपल से निकाल सकते हैं कि इसमें जो r की वैल्यू आएगी, r इनपुट, दिस इज व्हाट vx अपॉन i। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट द इक्वेशंस, उसको समझ आपको इक्वेशन को समझना है। तो vx अपॉन ix ये कितना हो जाएगा, माइनस r1 r3 अपॉन r2। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब इसमें आप इसकी वैल्यू रखिए। r1 की वैल्यू 10 है, r3 की 1 मेगा ओम है, 10 1 मेगा ओम एंड 100, 10 1 मेगा ओम मीन्स 10 टू द पावर 6 अपॉन, आपके पास R2 कितना दिया है, R2 इज अगेन इट इज 100। ओके, तो ये 10 टू द पावर 4 हो गया। तो ये माइनस कितना आना चाहिए, अगर ये किलो ओम है, अगर R2 जो है, देखिए इसमें क्वेश्चन में, तो मैं एक बार चेक करती हूँ फिर से, क्वेश्चन में 100 किलो ओम, तो कहीं 100 किलो ओम लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे हाँ, तो ये कट हो गया, तो ये आपका माइनस 10 टू दी पावर 5 आ गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस 100 इंटू 10 की, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस 100 किलो ओम। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी, कहाँ चला गया, ओके, ये कभी कभी ना ऐसे ही मिस हो जाता है। तो ये माइनस 100 किलो ओम, वैसे तो ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, देखिए अगर सिंबल माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, आंसर्स में, ऑप्शंस में, तो आप माइनस, अगर आपका सॉल्व करके आ रहा है तो आप लगाइए, नहीं लगाया है ऑप्शन में तो आप वैसे ही दिखा दीजिए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मुझे इतने क्वेश्चंस कराने थे, तो अगर आपको उसको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये सब मैं काफ़ी मेहनत से पढ़ाती हूँ। टिल देन प्लीज़ स्टे विद मी।